মৌলানা নেই, 2 জন নেই, 3 জন নেই, 33,000 মৌলানা দেশটা স্বাধীন করবার জন্য শহীদ হয়েছে। 33,000 লিস্টেড। পিছন দিক থেকে বলছে যে আরো বেশি, এটা লিস্টেড। দুঃখের বিষয় যে ইতিহাসক আজ বিকৃতি করবার চেষ্টা হচ্ছে, ইতিহাসটা ভুলাই দিবার চেষ্টা। তো তোমাকে আমি একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি। ইনফরমেশন এইটা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর প্রচুর রিসার্চ চলছে, প্রচুর কাজ হচ্ছে এবং স্কলাররা হচ্ছে। তোমরা যদি 33,000 লোকের নাম জানবা চাহেন, তাহলে আমার ভারতবর্ষের কোন ইউনিভার্সিটির গবেষণাপত্র এই লোকগুলোর নাম পাবেন না। ফলে নতুন নতুন যে রিসার্চ হচ্ছে, এই রিসার্চে তোমরা 33,000 মানুষের নাম পাবেন মৌলানার। এবং সবচেয়ে বড় গর্বের ব্যাপার যে এই 33,000-এর মধ্যে মেজর অংশটাই হইল জামাতে উলামায়ে হিন্দ। এটা আরেকটা গর্বের ব্যাপার। এই একটা জিনিস। দ্বিতীয় জিনিস, আজ 26 জানুয়ারি তোমরা এই উৎসবটা পালন করছেন। আমরা 2টা জিনিসও খুব বড় করে দেয়। তুমি কিছু ইনফরমেশন দিচ্ছি, তারপরে কিছু কথা বলি। যে আমরা পালন করছি 26 জানুয়ারি, পালন করছি 15ই আগস্ট। আরেকটা দিবস আছে আমার ভারতবর্ষের ইতিহাসের 26 নভেম্বর, সংবিধান দিবস। তো যেই জিনিসটা সব থেকে বিপদত পড়বে, মি যদি বিপদত পড়ু তাহলে তোমরা মুখ উঠাবা অস্তেন। তাহলে আজ ভারতবর্ষের সব থেকে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান। যদি সংবিধানটা স্ট্রং হয়ে যায় তাহলে যেতলা আপদ আজ দেখা পাচ্ছি একটাও নিবে। তাহলে 26 নভেম্বরটা আমার এত বড় করে পালন করবা হবে যে সংবিধানখানে আমার মূল। এই 26 জানুয়ারি 15ই আগস্ট বাদ দিয়েও 26 নভেম্বরও মাথায় রাখতে হবে। আরেকটা জিনিস, যেই নফরতের যে রাজনীতি হচ্ছে, এই নফরতের রাজনীতির আর যদি আমরা কিছু বলবা যাচ্ছি তাহলে এটার একটু অন্য সেন্টিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমরা খেয়াল করছেন যে এই নফরতের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ একটা লোক খুব ডর করছে। এই লোকটার নাম হইল মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীর নামটা নিলেই নফরতিটা জ্বলে যাচ্ছে একদম। তাহলে এই 30 যে জানুয়ারি হচ্ছে, 30 তারিখও কিন্তু গান্ধীর হত্যা দিবস। ফলে গান্ধী বেশি করে হাইলাইট করো। গান্ধী যত বেশি আগুত উঠবে, নফরতিরা কিন্তু তত পিছনত পড়ে যাবে। আমরা সহ্য করতে পারি না, বাকি সবাইকে সহ্য করি। ইতিহাসক বদলাবার যে চেষ্টা হচ্ছে, এই ইতিহাসক তুলে ধরবারও চেষ্টা। আমরা যেমন ইতিহাসক বদলাবার চাচ্ছে কিছু নফরতি মানুষ, তাহলে ভারতবর্ষের যে প্রকৃত ইতিহাস, এই প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরাও কিন্তু আমার কর্তব্য। আর হুসেনিয়ার লগত মোর একটা আবেদন যে এই যে 26 জানুয়ারি আজ জানেন যে প্রচুর ব্যস্ত রয়েছে প্রশাসনের লোক এবং রাজনীতির যেটা লোক, সামাজিক লোক। মোর মনে হয় তোমরা সকাল সকাল পতাকা উত্তোলন করেলেন, আর জোহর থেকে আসর পর্যন্ত তোমরা এই প্রোগ্রামটা রাখো। মোর মনে হয় যে সবাইকে পাবেন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের লোককে পাবেন, সবাইকে পাবেন। ছাত্রলার লগত মোর একটা আবেদন, যেটা তোমরা টিচার ছেন, আজ 26 জানুয়ারির দিন, যে সেই এডুকেশন পলিসি আর নাই। যে এডুকেশন পলিসি আমরা এতদিন চলল, বহুত কিছু পাল্টা গেছে। আজ টেকনোলজি ইনফরমেশনের দিন। আজ গান্ধীজি যদি বাঁচে রইলে, এবারকার যেমন আমি একটা ইনফরমেশন দিচ্ছি যে আইএএস অফিসার ও আইএএস এর ইন্টারভিউ জিজ্ঞেস করলে যে এই সময় যদি আজকার তারিখের যদি গান্ধীজি বাঁচে রইলে তাহলে কি করলে। এইটা প্রশ্ন এমনি তো ধরলে যে এই মোবাইলটা গোটা দুনিয়ার ইনফরমেশন পাই যাবে, কিন্তু এরা যে মেধার যে মেরিট টেস্ট হচ্ছে, এই মেরিট টেস্ট অন্যভাবে হচ্ছে। যেই ছেলেটা এবারে চান্স পালে এই প্রশ্নটা স্যাটিসফাইড হল, উত্তরটা আর এইরকম ছিল যে যদি গান্ধীজি আইন বাঁচে রইলে হ্যাঁ, তাহলে সিএর যে আইন, গান্ধীজি চলে গেলে পাকিস্তান উঠে যা কইলে যে না সিএ এর বিরোধিতা করলে দেশদ্রোহী কইলে, পাকিস্তানি কইলে পাকিস্তানত চলে গেলে, পাকিস্তানত যা ফের উঠে মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ালে তো উঠে হিন্দুদের পক্ষে দাঁড়ালে, ফের তো ভাগাই দিলে ইন্ডিয়া পৌঁছলে তো ফের সিএ অ্যাপ্লাই করলে হ্যাঁ, যে বাংলা পাকিস্তান থেকে পালাইছে নাগরিকত্ব পালে। এই টেকনোলজি আর যে শিক্ষার যে বিস্তার ঘটেছে, যে 6 প্রোগ্রাম করলে তোমরা ছোট ছোট জিনিস লিখো, এবং অবশ্যই সেটা ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিন্তু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিয়েছি।
ইসলাম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে না, ইসলামিক যে সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি ইসলামের যে আনুগত্য, সংবিধানের প্রতি যে আনুগত্য, এইলাম মানে আরও কালচারাল প্রোগ্রাম করো। 26 জানুয়ারি যেমন হাই স্কুল মাঠের বিভিন্ন স্কুলে অংশগ্রহণ করলে, হুসেনিয়া মাদ্রাসা অংশগ্রহণ করুক, সবার প্রতি এই আবেদন জানায়। মঞ্চত উপস্থিত আমার বিশিষ্ট জেলা ব্যক্তি ছিলেন করিম সাহেব, চারিকুল সাহেব, ডক্টর হাসিবুর রহমান সাহেব, জাভেদ সাহেব, সাদিকুল ইসলাম, আর এখানকার যে মৌলানা সাহেব ছিলেন জাভেদ সাহেব, সবাইকে মোট পুনরায় সালাম জানাই। আমি মোট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করতে আসলাম। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एक बहुत ही मौजूद मेहमान अभी तशरीफ़ लाए हैं, जनाब अरीकुल इस्लाम साहब, डिप्टी मजिस्ट्रेट इस्लामपुर। मैं गुजारिश करूंगा कारी मुदफ़्फ़र अजीज़ साहब और मुनाफ़िर साहब से और जनाब जावेद साहब से कि उनका सालपोशी की तरह इस्तकबाल करें। अजीज़ तलबा, अभी आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं। सब ये जानते भी और मानते भी और सुनते भी हैं सुबह सुबह से कि हमारे अकाबिरीन ने इतनी कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। सुन रहे हैं ना, कितनी जानें कुर्बान की, खून की नदियां बहा दिए। आज हम थोड़ी सी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तमाम तलबा से गुजारिश करूंगा कि सामने आकर के बैठे। आधा घंटा की धूप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा अकाबिरीन जाने को कुर्बानी में लगाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तशरीफ लाए, आगे तशरीफ लाए। आज इसलिए हम पीछे हैं, हमें कुर्बानी देना नहीं आता, हम कुर्बानी देना चाहते नहीं है। बगैर कुर्बानी के कोई कामयाबी नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो कुर्बानी मांगता है, बगैर कुर्बानी की कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुर्बानी देने वाले बने हर चीज में। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश करूंगा जनाब सादिकुल इस्लाम साहब से, जो इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन हैं इस्लामपुर के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। सबसे पहले उलमाए किराम, तलबाए इज़ाम, दानिशुगादान कौम व मिल्लत और अमन व शांति के पैकर, जमहूरियत के आलमबरदार जनाब इज़्ज़त माब अब्दुल करीम चौधरी साहब, रुकन असम्बली इस्लामपुर को अदब से मेरा सलाम अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और यूनान व मिस्र रोमा मिट गए जहां से, यूनान व मिस्र रोमा मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। अब तक है मगर बाकी नामो निशान हमारा। तो इस शेर की अगर मैं तशरीह कर दूं, इस शेर की अगर डिटेल्स बता दूं तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि यौमे जमहूरिया का जश्न की महफिल है ये, जो दारुल उलूम हुसैनिया ने ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत तशरीफ फरमा है जो अगर आप जमहूरियत का मतलब समझना चाहें तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि श्री अब्दुल करीम चौधरी की जिंदगी को अगर आप देख ले तो सरापा वो जमहूरियत के मिसाक है। अब आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? वो यूं हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि अमन और शांति के पैकर हैं, उसी तरह वो जमहूरियत के आलमबरदार भी है। मैं स्टेज में कैमरा के सामने कह सकता हूं कि अब्दुल करीम चौधरी जमहूरियत के आलमबरदार है। और वो यूं है कि मुझ जैसा नाचीज, मुझ जैसा फकीर, मुझ जैसा कमजोर, मुझ जैसा कम इल्म, मुझ जैसा कम उम्र एक लड़का, उनके खिलाफ असेंबली इलेक्शन में मैंने इलेक्शन लड़ा। जो बच्चों ने जमहूरियत के मतलब समझाया
कि जमहूरियत क्या है, उसमें तमाम लोगों को बराबरी का हुकूक मिलते हैं, तमाम लोगों को जीने का अधिकार है, तमाम लोगों को हुकूमत में हिस्सा लेने का अधिकार है। तो जब मैं इलेक्शन लड़ने का अनाउंसमेंट किया, इलेक्शन लड़ा, प्रचार और प्रसार किया, मैं हार भी किया, उनकी जीत हुई, अल्लाह ने उनके सर पे सुनहरा ताज फिर से रखा 11 मरतबा। लेकिन पूरे सफर में मेरे कभी उनके तरफ से कभी ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ, ना कभी डांट फटकार हुई, ना किसी तरह मेरे रुकावट डाले, ना मेरी गाड़ी को किसी ने रोका, बल्कि उनके बहुत सारे मुरीदीन, मोतकदीन, मुतवस्सिलीन जो है हमेशा उनको प्रेशर देते रहे कि शादी को रोको, शादी पर हमला करेंगे, शादी को क्या कहते हैं कि 30 लाख रुपया का उस पर जुर्माना करेंगे, इस तरह की बातें आती रही। लेकिन मुझे जो समझ में आई या सुनने में आई, वो हमेशा अपने चाहने वालों को रोकते रहे कि उनको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, उनको लड़ने दो। तो जमहूरियत का सही मीनिंग जो है वो ये है कि इस देश में तमाम लोगों को आजादी के साथ रहने का हक है, इलेक्शन लड़ने का हक है, आजादी के साथ बोलने का हक है, आजादी के साथ ओढ़ने पहनने का हक है, आजादी के साथ अपने खाने पीने का हक है, आजादी के साथ घर बनाने का हक है, आजादी के साथ सियासत में हिस्सा लेने का हक है। उसी तरह उसी को बोलते हैं जो जमहूरियत। यानी और एक बात बता दूं, जो बसारुल साहब ने बोला कि आज जो ये तलबाए किराम दिखाई दे रहे, उलमाए किराम तलबाए इस्लाम दिखाई दे रहे हैं, हमें फक्र होना चाहिए कि हमारे असलाफ ने, उलमाए किराम ने, हजारों उलमाए किराम ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करके हमें आजादी का तोहफा दिया। और आज जो जमहूरियत को आप देख रहे हैं, जो देश आजाद होने के बाद 1950 में हमें ये कानून मिला, संविधान मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो कानून क्या है आपको बताता चलूं कि ये कानून अलग से कोई चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, उस खुतबे में अल्लाह के रसूल ने कौम के लिए, नेशन के लिए, उम्मत के लिए, दुनिया के लिए जो पैगाम दिया था, बाद में 1400 साल बाद जाकर के जब हिंदुस्तान में कानून बनता है तो अल्लाह के रसूल के उन्हीं उसूल और जवाबित को शामिल किया जाता है, अल्लाह के रसूल के फरमाए हुए उन्हीं अल्फाज को दोहराया जाता है। आप संविधान को पढ़ लो तो हुजूर के आखिरी खुतबा को देख लोगे तो आपको सिमिलरिटी नजर आएगी, इक्वलिटी नजर आएगी, बराबरी नजर आएगी। यानी रसूलुल्लाह ने जो निजाम हयात दिया है वही जो है संविधान में है। तो हमें फख्र है कि हम ऐसे रसूल की उम्मती है और ऐसे देश के वासी है कि हमारा देश दुनिया से सबसे खूबसूरत है और इसको कहने वाला कोई और नहीं है बल्कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके सिता हमारा। जज़ाकल्लाह बहुत खूब। अब मैं अजीजम अबरार को दावत दूंगा कि वह आए और इंग्लिश में अपनी कुछ करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Republic Day. Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Abrar Hussain. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day of our country. This day is national festival of our country. On this day, our constitution came into force on 26 January 1950. Republic Day is important for us as Independence Day. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written Constitution in the whole world. Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of our Constitution. Today we are a great republic. Republic means a country whose leader is president, not a king or a queen. This would not have been possible if our freedom fighter had not made numerous sacrifices for the independence of our country. I am proud that I am an Indian and I love my India. Assalamu alaikum. एक नज़म पेश करेंगे अजीजम जय सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ए वतन 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 जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम सिंध हो या हो गुजरात दिल्ली दक्कन है हमारा जहाँ तुझसे भारत वतन है हमारा लहू तुझ में गंगो जमन तेरे लाला गुल हम भी है चमन जुल्फ बर हमको तेरे सजाए थे हम जुल्फ बर हमको तेरे सजाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम टीपू इमदाद नानोतवी कौन थे शेख हिम्मत निगंगोही जी कौन थे सिंधी आजाद जौहर अली कौन थे अहमद अशफाक थान सिरी कौन थे गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम गोली चलने पे सीना दिखाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। माशाअल्लाह हजरात गिरामी, आप काफी देर से आप सबका वक्त बहुत ही कीमती है। हम आपका इस्तेमाल करते हैं कि आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद दारुल हसनिया इस्लामपुर की एक छोटी सी दावत पर आप यहाँ तशरीफ लाए। अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले मशवरा हुआ, हमारे इस मदरसे के रूह रवां हज़रत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब ने कहा कि 26 जनवरी के हम लोग प्रोग्राम करते हैं हर साल, लेकिन इस साल सोच रहा हूँ कि शहर इस्लामपुर के जो खास लोग हैं, जो करीम लोग हैं, उनको मदद किया जाए। बस उसी दिन से हम लोगों ने आज़म लिया और दावतें शुरू हुई। और ये जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, सिर्फ एक हफ्ते की मेहनत है, एक महीने या 15 दिन की नहीं, सिर्फ एक हफ्ते की मेहनत है जो आपके सामने बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है। तो आप कहेंगे कि कैसा प्रोग्राम है, क्या है। आजकल स्कूलों और कॉलेजों में जो प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ म्यूजिक में रह गया है। असल बात जो कहनी है वो किसी को समझ में नहीं आती है। म्यूजिक सुनते हैं और कानों की अय्याशी होती है। बस हमने सही जो चीज है उसको याद कराने की कोशिश की है। अब मैं मेहमान किराम का बहुत ही दिल की गहराइयों से तमाम मेहमान किराम का मैं इस्तकबाल करता हूँ और मैं अब आवाज दूंगा हमारे नुमाइंदा जिला परिषद जनाब जावेद साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। वक्त बहुत कम है, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। दारुल हुसैनिया मस्जिद नगर के इंतजामिया कमेटी को, खास तौर से हजरत इसाक साहब को, जिन्होंने इस्लामपुर की सरजमीन में एक तारीखी रिपब्लिक डे योम जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। और इस मौके पर मौजूद यूं तो सभी कहते हैं हमारे इलाके के एमएलए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे इलाके के पहरादार,
कुछ लोग कहते हैं कि 11 बार के एमएलए, लेकिन हकीकत यह है कि चौधरी अब्दुल करीम साहब इस्लामपुर की सरजमीन पर हमारी एक शान बान आन बनकर वो मौजूद हैं। आप लोगों की तरफ से भी मैं उनका तहे से शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, इस डाइस पे मौजूद हमारे और आप सबों के इस्लामपुर सब डिवीजन के हमारे मजिस्ट्रेट DCDM जनाब आरिकुल इस्लाम साहब, जो अपने कीमती वक्त निकालकर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका तहे दिल से आप सबों की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे इलाके के रहबरों में से एक रहबर डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब, और इस इजलास की जो सबसे कीमती एक रोशनदान कहें या रौनक का मुजाहरा हम फख्र से कहते हैं कि जमायतुल उलमा के सदर बिहार हमारे बीच और आपके पास बैठे हैं जनाब मुफ्ती जावेद अरफात साहब, और साथ में हमारे चचा इस्लामपुर के फख्र डॉक्टर हसीबुर रहमान साहब अलहाज अपने कीमती वक्त निकालकर यहाँ आप सबों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और उर्दू एकेडमी के नोडल ऑफिसर हमारे नाजिम बाबू, साथ में हमारे छोटे भाई मेहताब चौधरी साहब, और हमारे बीच मौजूद अजीम भाई, और जितने भी यहाँ मौजूद हमारे रौनक के दाइस हैं, एडवोकेट कमरुज्जमान साहब, बुलंदशहर से आए हुए नूरुद्दीन साहब, और जितने भी दिगर हैं, आप सबों को तहे दिल से मैं सलाम अर्ज करता हूं। किसी का नाम अगर छूट गया हो तो माफ कीजिएगा। वैसे आज के दिन सभी को हक है कि आइए हम सब मिलकर यौम जमहूरियत का पालन करें और इस मदरसा मरहूम हाज इदरीस साहब का, वो जो बानी थे यहाँ के, एक ये बंजर इलाका, बंजर से जमीन पर लोग कहते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिलता है, तो आज ये जंगल झाड़ से बड़ा हुआ इलाका उनकी मेहनत की वजह से आज हमारे इलाके में ये मदरसा के शक्ल में हमारे इलाके के मासूम बच्चों को तरबियत की पढ़ाई, तालीम की पढ़ाई और जिंदगी को कैसे आगे बढ़ना है, हमारे ख्वाबों को कैसे उसे पूरा करना है, ये सारी चीजों की तरबियत इस मदरसा से दी जाती है। मैं अभी देखा यहाँ पर हमारे बच्चों ने जो आपस में गुफ्तगू की, जिसके जरिए से हमें तारीख बताया उन्होंने, हमने देखा है कि बच्चों ने इंग्लिश में भी यहाँ की स्पीचेस दी हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा कि आज दौरे जमाना, दौरे हिंदुस्तान में हर तरह की तालीम हर मदरसा में भी होनी चाहिए, हमें उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए, इसकी जरूरत है हमें। मैं एक मदरसा में गया था, वहां पर एक कस्बा में एक मदरसा था, लेकिन वहाँ के मासूम बच्चों ने की अपनी तकरीर वो बांग्ला में भी दी है, इंग्लिश में भी दी है, उर्दू में भी दी है, लाजवाब था। ऐसा लग रहा है कि हमारे मदरसा के ऊपर एक धब्बा पहले लगा हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ दीन की बातें होती है, दीन की पढ़ाई होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। एक इल्जाम भी हम पर था, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में चलने के लिए जितनी भी जबानें हैं, हमारे मदरसा ही से बच्चे सीख के निकलते हैं। और यह भी सच है कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे मुल्क तक ही महदूद नहीं है, इस मदरसे से निकले हुए हमारे गैर ममालिक में भी जाके अपने राह नाम को रोशन करते हैं। यह और बात है कि हमें यहाँ पे गिरी हुई नजर से देखी जाए, लेकिन ये मत भूलिए कि इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे जितने भी धर्म जात हैं, सबों ने मिलकर कुर्बानी दी है। इसकी खूबसूरती या सुंदरता यही है कि इस देश की आजादी में जब सबों की कुर्बानी है, तो ये ऐसा फूल है जिसकी हिफाजत करना हम सबों का ये फर्ज बनता है।
कोई कुछ भी सोचे मत भागे उधर, बस अपने फर्ज को निभाते जाइए। मैंने एक शेर देखा था, यहाँ मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। ये कुरान सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं, हर मजहब हर धर्म के लिए ये कुरान है, जिसको पढ़कर आज हमारी दुनिया के लोग चांद पर भी जाते हैं, हमारी दुनिया के लोग समुद्र में भी आग लगाते हैं, हमारी दुनिया के लोग अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए उसी का सहारा लेकर रहते हैं। वही ईमान है हमारा, इस ईमान को बचा कर रखना हम सबों का फर्ज बनता है। आप सबों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए मैं एक बात कहूंगा कि मेरे बच्चों ने जो मुजाहरा यहाँ पर किया, लेकिन वो बच्चे अपना हौसला अफजाई कर रहे थे, लेकिन मैं ये देख रहा था कि मेरे बच्चों ने बैठकर झंडा तो लहराया जरूर, लेकिन बच्चों का हिम्मत तो अफजाई के लिए झंडे की नहीं तालियों की जरूरत पड़ती है। तभी मैं कहता हूं अपने गांव के अल्फाज में कि खाने में ताली, खाने में थाली, और हर जलसा को कामयाब बनाने में क्या होना चाहिए? ताली। उससे हमें ताकत मिलती है, हमारे हौसला को बुलंदी मिलती है, हमारे जज्बात को उभारती है। तो जब भी इस तरह के प्रोग्राम हो, तालियों को अपने अंदर छुपा के मत रखना, उसे जाहिर करना, ताकि सामने वालों की हिम्मत मिले, हौसला बुलंद करे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। अब मैं अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा जनाब अरीकुल इस्लाम साहब डिप्टी मजिस्ट्रेट इस्लामपुर से कि वो तशरीफ लाएं और अपना तासुब पेश करें। আসসালামু আলাইকুম। আজকে এই মঞ্চে অ্যাকচুয়ালি ইসলামপুরের গুণীজনদের সমাবেশ, সকলকে আমার অন্তর থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। ইসলামপুরে আমি প্রথম আসার পর এই মসজিদেই নামাজ পড়ি। এখন সব জায়গায় তো মসজিদে ভাগ আছে, আমি কিন্তু সব মসজিদে নামাজ পড়ি। তো ছোট ভাইদের সামনে, ওদের সামনে দু একটা কথা বলার জন্য এসেছি আমরা, যে বুঝতে হবে যে আমরা কোন জাতি, আমরা কোন জাতি এবং আমরা আমাদের কেন পাঠিয়েছি। আমি কোরআন হাদিস জানি না বেশি, সাহেবদের সামনে বলতে পারবো না। যেটুকু জানি যে আমাদেরকে বের করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে। আমাদের কাজই হবে মানুষকে ভালোর দিকে ডাকা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের দিকে ডাকতে হবে, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের দিকে ডাকতে হবে, মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর দিকে ডাকতে হবে। প্রথম কি আয়াত কোরআন শরীফে আসলো যে পড়ো, আজকে আমরা পড়ো ভুলে গেলাম। আমরা যদি ভারতবর্ষ ইতিহাস দেখি, যে ভারতবর্ষের প্রথম মুসলিম ছিলেন একজন হিন্দু রাজা, 631-32 দিকে প্রথম কেরলের একজন রাজা, যিনি আরবে গেছিলেন। কোথাও বলেন যে উনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরে ইসলাম গ্রহণ করলেন, কেউ বলেন যে উনি দেখা পাননি সাহাবাদের। এবং তার মসজিদটা আজকের দিনেও আছে, রাজা চেরামল মসজিদ। এটা ইতিহাসটা কেন জানতে হবে যে আমরা কারা ছিলাম, এটা জানতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা না জানলে, ঠিক একটা গল্প বলেছিলাম না, যে লায়নের ছেলে যদি ভেড়ার দলে থাকে ও ভেড়াই হয়ে যাবে, কিন্তু লায়ন ছেলে যদি জানে যে আমি লায়ন, তাহলে কিন্তু সে লায়নই হয়ে যাবে। তো আমাদের ইতিহাসটা জানতে হবে যে আমরা কারা। তারা বলতে যাচ্ছে যে লায়নের বাচ্চাকে যদি বলে তুমি ছাগলের বাচ্চা, ও কি শুনবে নাকি? তাই ও ঠিক সময় ঠিক অ্যাকশন নিয়ে নেবে। তো যেটা বলার উদ্দেশ্য আমাদের, যে 630-এ পরে আমরা আসলাম এখানে। 712 সালে মোহাম্মদ বিন কাসিম আসলেন, ভারতবর্ষের প্রথম মুসলিম বিজয় হলো, উনি ব্যাক করে চলে গেলেন। আবার 1000 সেঞ্চুরি কাছ থেকে আসা হলো, মোটামুটি 1195-96 সাল থেকে ভারতবর্ষে মুসলিম রুল হলো। 1196 যেটা শুরু হলো আমাদের মুর্শিদাবাদে 1757, সিরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো। 1857 সালে একদম পুরোপুরি মুসলিম রাষ্ট্র শেষ হয়ে গেল। তো 1200 থেকে 1857 অনেকটা 657 বছর সময়। তা আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি, আমি তোমাকে যুগের শ্রেষ্ঠ কেন মনে করবে। আমি সবাইকে বলি যে 1526 সালে বাবর কামান ছুড়েছিল, আর ইসলামপুরের লোকরা ঢিল ছুড়ে, লাঠি ছড়ে। 1526 যারা কামান ছিল, আজকে তারা কিন্তু অ্যাটম তৈরি করতে পারছে না। তো সেদিনও কিন্তু, যেদিন ভারতবর্ষে মুসলিমরা ছিলেন, সেদিনও কিন্তু 18% ছিলেন, আজকেও কিন্তু 18%। ইহুদিরা পৃথিবীতে 1%, গোটা পৃথিবী জুড়ে দায়িত্ব করে। তো সংখ্যা বড় কথা নয়, কিন্তু আমাদের বড় কথা হচ্ছে কোয়ালিটি। তো এই কোয়ালিটি ডেভেলপ করতে হবে আমাদেরকে। তাহলে কোয়ালিটি কীভাবে ডেভেলপ করবে?
তোমার জেনে দেখবে আজকে পৃথিবী চলছে অ্যালজেব্রা আবিষ্কার করেছে মুসলিমরা, কেমিস্ট্রি আবিষ্কার করেছে মুসলিমরা, জ্যোতির্বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে মুসলিমরা। ওনারা বললেন যে মহাবিদ্যালয়ে যত লোক জীবন দান করেছে তার 90% মুসলিমরা। এটা ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে, আর ইতিহাসকে প্রিজার্ভ করতে হবে। আর কি করতে হবে যে দেশ ভাগ যেটা হলো সেটা এখানকার মুসলমানদের জন্য খুব দুর্ভাগ্য। আজকে আমরা এই দেশে যারা রয়ে গেছি তারা হচ্ছে খেটে খাওয়ার লেবার শ্রেণীর মানুষ আর কিছু জমির মানুষ। বাকি আমাদের যারা ক্রিম ছিল তারা সব ওপার বাংলা চলে গেছে। কিন্তু তোমাদের যোগ্যতা থাকে, একটা নতুন জাতি কেবল উঠে আসছে। শুনবে যে আলামিন মিশন বলে একটা মিশন আছে, সেখান থেকে প্রত্যেক বছর 500 উপর ডাক্তার বের হয়। কিছুক্ষণ আগে আমরা যে প্রোগ্রামটায় বসছিলাম, মোহাম্মদ আব্দুল শাহিদ আইএস, মঞ্চে ছিলেন মঞ্জার হোসেন আইএস, আরিফুল ইসলাম WBCS, মোহাম্মদ ওসিউল্লাহ সাহেব WBCS, মিস্টার সাহেব, এমএলএ সাহেব। আমাদের বড় উদ্দেশ্য যে তোমার যদি যোগ্যতা থাকে, এটাই ভারতবর্ষের বিউটি আছে। তুমি উত্তেজিত হবে না, তুমি ফাঁদে পা দিবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষে APJ আব্দুল কালাম উনি রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। আজকে যদি তুমি সিনেমা জগৎ দেখো, সব দেখবে মুসলিম হিরো হিরোইন। আর দেখো আজিম প্রেমজিকে দেখো, ভারতবর্ষের 2 থেকে 3 নম্বর মুসলিম। তো শুধু মুসলিম বলে আমাকে বঞ্চিত করছে, মুসলিম বলে আমাকে উঠতে দিচ্ছে না, এইসব কথা কোনো দাম নেই। তোমাকে ভাবতে হবে যে আমাকে শিক্ষার মাধ্যমে যেতে হবে। যদি তুমি শিক্ষিত হতে পারো তাহলে আজকে কিন্তু মঞ্চে আমরাই প্রোগ্রাম করে আসতাম। আর হতে হবে কি যে ইসলামপুরের যেটা বিউটি, ইসলামপুর মুর্শিদাবাদের মালদার পরে একটা ভালো জায়গা আছে। কিন্তু দুঃখ লাগে, আমি আজকে দেখলাম প্রথম কিছু ভালো মানুষকে দেখতে পেলাম। আমি কিন্তু 2 মাস হয়ে গেল কোনো ভালো মানুষ দেখতে পাইনি ইসলামপুরে, সব বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কিন্তু কোরআনের কথা কি ছিল যে ভাই তোমরা ইসলামটা রশির মতো চেপে ধরো। তা আমি এটা আপনাদের কাছে প্রেয়ার করবো যে চেপে ধরেন, একটু নিজেদের মধ্যে চেপে ধরেন। নিজেদের মধ্যে মারামারি করবেন, উকিলকে টাকা দিবেন, মারামারি করবেন, পুলিশকে টাকা দিবেন। তো নিজেদের মধ্যে একটু মিটিয়ে নেন। আর চেষ্টা করবো যেটা কি যে এরকম তো ছিল না, প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধর্মীদের জন্য মদিনা খুলে দিয়েছিলেন, তাদেরকে সহবাস করছেন। এখানে তো দেখি এই মসজিদ তো এদের মসজিদ, ওই মসজিদ ওদের মসজিদ, এই মসজিদ তাদের মসজিদ, এই মসজিদ তাদের মসজিদ। তা আমি বলি যে সবাই ঠিক আছে ভাই, তা তুমি আলহামদুলিল্লাহ কি তোমার আলাদা আছে না? তুমি দিনে 5 ওয়াক্ত নামাজ আলাদা পড়ো। তো বাচ্চা থেকে এটাও শিখান যে না আপনার এই বাচ্চা সব মসজিদে নামাজ পড়বে, এই বাচ্চা সব মসজিদে নামাজ পড়বে, ওর আলহামদুলিল্লাহ একই আছে, ওর 5 ওয়াক্ত একই আছে। এবং ওদেরকে বুঝান যে ওদের ড্রেস কোড বুঝান, কথা বলা শেখান। আজকে আমরা মুসলিমরা এমন স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেছে আমরা যে আমরা অফিসে গিয়ে কথা বলতে জানি না। আমরা অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছি, মুখে পান চিবিয়ে যাচ্ছে, সব জায়গায় পান চিবিয়ে যাচ্ছে। এবং সব জায়গায় গিয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে কি পানের পিকটা ফেলা। মুসলমান যেন একটা অসভ্য, মানে অভদ্র, মানে একদম অশিক্ষিত জাতি। তো এই জায়গায় আপনাদের প্রথম দায়িত্ব যে সেই আমাদের স্ট্যাটাসটাকে চেঞ্জ করা, যে এসো ভাই এই যে কথাটা বললেন না যে সত্যি তো মানুষের যত শিক্ষা কেন ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া, এটা আইনস্টাইনের কথা যে শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষা জোর নাই সে শিক্ষা শয়তান তৈরি করার কারখানা। তো আমি আবেদন করবো আমার সামনে ছোট ছোট ভাইরা আছে, ওদেরকে আমরা সব ধরনের হেল্প করি। যারা মঞ্চে আছেন আলোকিত মানুষ, ওদের সঙ্গে ফ্লোয়ারদের শিখুন, ওদেরকে ভাষা শিখান, ওদেরকে পেশা শিখান, যেন একটা শর্ত নিয়ে রাস্তায় দৌড়ে দিতে না পারে। যদি ইসলাম মানে এরকম না হয় যে ভাই মসজিদে খুব ভালো বক্তব্য দিচ্ছেন, শেষ মতো একটা কথা বলে কি ভাই এই মসজিদে এই হবে এই হবে সেই হবে দান করুন। তার মানেটা হয়ে যায় এরকম যে আপনি এতক্ষণ যা বললেন সব কিছু টাকা আদায় করার জন্য। তো দিস শুড বি চেঞ্জ, অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করেন, দেখবেন ভারতবর্ষে এত ভালো জায়গা যে APJ আব্দুল কালামকে রাষ্ট্রপতি করেছে, এই করিম সাহেবকে কিন্তু MLA করেছে, সাদিকুল সাহেব বলে সবাই শুনে, এখানে নাজিম আছে, সবাই বক্তব্য শুনে। এটাই ভারতবর্ষের বিউটি আছে। কারো ফাঁদে পা দেবেন না, প্ররোচনায় পা দেবেন না, প্রশাসনের সঙ্গে সহায়তা করবেন। আর একটা এক্সিকিউটিভে দাবি করছি যে রাস্তাঘাটে যেন আমাদের সেই সনাতন ব্যবসা, সে 500 বছরের পুরাতন ব্যবসাটাই আমাদের ব্যবসা। আরে ভাই যুগ অনেক গিয়েছে, আপনার এলাকায় লোটো হচ্ছে বন্ধ করে দেন, আপনার এলাকায় মদ হচ্ছে বন্ধ করেন, দেখবেন আপনার সোসাইটি আপনি ভালো হবে, আমাদের সোসাইটিকে আমাকে করতে হবে। আর ওপেন করুন, আপনি সব সম্প্রদায়ের লোককে রাখুন। মসজিদের তো মানে পৃথিবীর প্রথম তো একটা মানে কোর্ট ছিল, এটা আইনের কোর্ট ছিল, ভালোবাসায় কোর্ট ছিল, সেই জায়গাটা নিয়ে আসুন। সবাইকে খুব ধন্যবাদ। আমার কথার মধ্যে যদি কারো ইমোশনকে হাত করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। मुत्तहिद हो तो बदल डाला दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डाला दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद है तो मरो शर क्यों मचाते हो। माशाअल्लाह जनाब अरीफुल इस्लाम साहब ने बहुत अच्छी बात कही। इत्तिहाद हर हालत में होनी चाहिए, जिस कौम को जिस जाति के इत्तिहाद के साथ रहना चाहिए। उनका मशवरा हमें कबूल है।
अब मैं दरख्वास्त करूंगा, बस आखिरी कड़ी रह गई है। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब कारी मोहम्मद साहब से कि एक दो मिसरा नज़म के पढ़े। जनवरी पर नजर है ছিল মনে হয় बहुत माशाअल्लाह। अब मैं आज के इस प्रोग्राम जो खूबसूरत सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तारीख साज प्रोग्राम जिनके ईमा और इशारे पर यह प्रोग्राम सजाया गया, और इस मदरसे के रूह रवा मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ईसा कासमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वह तशरीफ लाएं और मेहमानों का इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम खुद्दाम दारुल हुसैनिया इस्लामपुर मगरिब बंगाल अल हिंद आज खुशी से शर्मसार है कि आज हमारी अदना सी दावत पर शहर इस्लामपुर के धड़कता हुआ दिल और हम सबों के सरपरस्त जनाब इज्जत माब चौधरी अब्दुल करीम साहब तशरीफ लाए। हम उनका दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से वजीर ममलकत जनाब गुलाम रब्बानी साहब तशरीफ लाए, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और इसी तरीके से जनाब जिला परिषद के नुमाइंदा हमारे जावेद साहब और डिप्टी कमिश्नर जनाब अलीफुल इस्लाम साहब और इसी तरीके से हमारे नाजिम भाई पसारू साहब, वकील कमरुज जमा साहब और हम सबों के सरपरस्त जनाब डॉक्टर हसीबुर रहमान साहब, इन तमाम लोगों ने और बहुत से लोग हैं, उन तमाम लोगों में दिल से इस्तकबाल करता हूं। आप हजरात को ये मालूम होना चाहिए कि जिस चमन में हम तशरीफ फरमा है ये इदारा दारुल हुसैनिया है। ये हुसैनिया शेखुल इस्लाम शेखुल अरब वल अजम मुजाहिद मिल्लत शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम है।
उन्हीं का एक सबूत मौलाना इदरीस साहब ने यहाँ 30 साल पहले इसकी बुनियाद रखी, जो एक छोटे से झोपड़ी में था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तवज्जो के बरकत से अब ये सायादार घना दरख्त हो चुका है। दुआ फरमा के इधर दिन बड़ी तरक्की फरमाए। यहाँ जो आपने प्रोग्राम देखा, हर साल बच्चे इसी तरह से प्रोग्राम पेश करते हैं। इस मरतबा मैं मीटिंग में बैठा था तो दिल में बात आई कि हम लोग प्रोग्राम पेश करते हैं लेकिन हमारे नुमाइंदों लोगों को पता नहीं चलता है, तो दावत दो। अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना सी हर का पता आप लोग तशरीफ लाए, हम फिर 2 बार आपका शुक्र इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे मुक़द्दमा दरख्वास्त है कि जब जब भी हमारे पास दावत पहुँचे आप इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को फूले फलाए, आपके फैज को खूब बढ़ाए, इस इदारे के फूलों के बरकत से मालामाल फरमाए। आज 26 जनवरी है जो 1950 में आज़ादी मिली थी और 1947 में आज़ादी मिली थी और 1950 में जो कानून का निफाज हुआ था उसी कानून की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मदरसा और हिंदुस्तान के जितने मदारिस हैं और हिंदुस्तान के जितने शहरी हैं, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, वो हर तरह की कुर्बानी पेश करेंगे इंशाअल्लाह, और हम भी कुर्बानी पेश करेंगे। अल्लाह ताला हिंदुस्तान को आबाद रखे और दीन दूनी रात में तरक्की फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। अब मैं बहुत ही अदब बयान के साथ गुजारिश करूंगा कबल इसके के हमारे 2 मेहमान हज़रत मौलाना कारी नौशाद आदिल साहब ऑर्गेनाइजर जमीयत उलमा हिंद और हज़रत मौलाना मारूफ करखी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, वो तशरीफ लाएं। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी मुज़फ़्फ़र साहब, कारी अब्दुल सलाम साहब से कि उनका इस्तकबाल करें। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट और शेर इस्लामपुर के आन बान शान जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब रुकन असम्बली इस्लामपुर को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हम कभी आने ना देंगे आज हिंदुस्तान पर। माहौल में हम पहली बार आए हैं जो बिल्कुल जुदा गाना है। आज यहाँ पर आकर के हमको बड़ी खुशी हुई है कि सिर्फ मदरसा में, इस मदरसा में दीनी तालीम होती है, दुनिया की तालीम दी जाती है और सब कुछ यहाँ पर सिर्फ मदरसा ही के तरीके पर चलता है। और क्या क्या मालूमात हमारे बच्चों को दी जाती है, ये इससे आज देख करके हमको ये खुशी हुई कि बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ के मुंतज़िम, यहाँ के मुदर्रिस, यहाँ के टीचर्स जो बच्चों को तालीम देते हैं, दुनिया की वाक़ियत देते हैं, इससे हमको आज हम बहुत देर से देख रहे थे, 2 घंटा हम यहीं बिता दिए काफी लोग के साथ। अच्छा लगा हमको। आज इस मस्जिद में हमारे ईसा साहब, मौलाना ईसा साहब इसका सदर हैं और इस मस्जिद के सदर वही हैं और वो बुलाओं के साथ और भी लोग हैं। और हमारे इसमें
आज शामिल हुए हैं, जिनको दावत की गई है, उनको लोग अब दावत के मेहमान लोग भी यहाँ आए हैं। सब नेता के सब तौर पर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमारे साथ में हमारे बताए गए कि ये डॉक्टर हसीबुर रहमान साहब हैं, यहाँ के सरपरस्त हैं इस तंजीम के, इस मदरसा दारुल उलूम के, और इसमें शामिल हुए हैं और भी आपके बहुत खास भाई थी। वो है हमारे WBCS ऑफिसर, IAS होता है, उसके बाद WBCS ऑफिसर होता है। IAS ऑफिसर हमारे SDO साहब हैं, अब्दुल शाहिद साहब, और WBCS ऑफिसर हमारे तारिकुल इस्लाम साहब हैं, उनको दावत हुई, हुआ हाजिर हुए। यहाँ पर हमारे साथ में है वही सादिकुल इस्लाम, साथ में है हमारे मौलाना मुफ्ती साहब, ये जो जावेद इकबाल, किसी हमारा तो कहते होते हैं लेकिन ये अपना सब कुछ अभी किशनगंज में सौंप दिए हैं। वहीं के इस्लाम से चोपड़ा भी जाते हैं, सुनापुर भी, दाता भी जाते हैं। अभी हमारे जावेद अख्तर भी हैं और वो सब लोग यहाँ पर नाजिम है, और यहाँ और भी हमारे लोग हैं जो लोग यहाँ पर तकरीरें रखी हैं। आप सब लोग तकरीर रखें, बहुत अच्छा लगेगा। देश की, मुल्क की, हमारी आज़ादी से लेकर के आज तक की बातें आप लोगों ने बताई हैं। उसके पहले की बातें हमारे अभी इस्लाम सब भी बता रहे हैं और भी बताए थे कि इतिहास क्या है, तारीख क्या है हिंदुस्तान की, वो सब तारीख की बातें आप लोगों ने हमारे बच्चों को इतनी मालूमात दी गई है। पर ये बताएंगे कि हम लोग को ये बच्चों को जो तालीम दिए हैं, ये सिर्फ जुबानी जो बोलते हमको क्या करते हैं, उसको जुबानी कर लिए ना, उनको को समझे, उन लोग को समझने भी बहुत जरूरत है। उनकी समझने में हमारी ये तारीख को, हिंदुस्तान की तारीख को समझने की बहुत जरूरत है। बच्चे को कितने अच्छे से यहाँ पर आर्गूमेंट किए, तकरीर किए, बोले अपने से, और एक आदमी का सवाल और जवाब दिए, और बच्चे लोग अपने में की बात बोले। इंग्लिश में भी बच्चों को तरबियत दी गई बोलने के लिए, इंग्लिश में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बच्चे को देखे बोले। और साथ साथ मैं आपने बता रहे थे वो इंग्लिश स्कूल में भी वहाँ पर तालीम दिया है बंगला की। आप जानिएगा कि मदरसा में आप उर्दू पढ़ाते हैं, साथ में हिंदी पढ़ाते हैं, अब हिंदी पढ़ाते हैं, बंगला भी हमारा यहाँ का जुबान है। बंगाल इसको बोलते हैं हम लोग का स्टेट लैंग्वेज। इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। सिर्फ उर्दू बोलने से ही आपका काम नहीं बनेगा। आपके कोई ऑफिसर ऐसे होते हैं जो उर्दू तक समझेंगे नहीं, जो बंगला भी बोलना पसंद करता है। इसलिए बंगला की भी तालीम यहाँ पर आप चालू करेंगे। हमारे पिता साहब को बोलेंगे जो यहाँ पर सदर हैं, हम बंगला की तालीम भी देंगे आप लोग। हमको बड़ी खुशी हुई कि बच्चों को जो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने हिंदुस्तान की तारीख के बारे में बताया है। हकीकत में आज का ये दिन है 26 जनवरी, ये 1950 से मनाया जाता है। 1947 में हमारे मुल्क आज़ाद हुई। मुल्क को आज़ादी मिली 1947 में 15 अगस्त को, और 15 अगस्त का दिन होता है जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के जो लोग बने थे वही लोग के सारा भारत में, सारे हिंदुस्तान में, हर जगह, हर राज्यों में, हर रियासत में, और वज़ीर आला लोग और जो लोग और भी बड़े बड़े नेता लोग थे वो आज़ादी मना चाहते थे। हमारे यहाँ पर खेल कूद के साथ, स्पोर्ट्स के साथ और पैरेड के साथ आज़ादी तो नहीं, लेकिन घर घर में झंडा लहराया जाता।
स्कूल, कॉलेज, मदरसा वगैरह में सब जगह इसी तरह से आज़ादी को मनाया जाता था 15 अगस्त का। और ये 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग खास, जबकि 15 अगस्त को आज़ादी हुई, लेकिन 26 अगस्त कब मनाते हैं कि दस्तूर-ए-हिंद को लागू करने के लिए, उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी को माउंटबेटन ने आपने सौंपा था। और तब से हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान 26 जनवरी को मना के आते हैं कि हम अपनी हुकूमत के खुद मालिक हैं, हम अपना दस्तूर के मुताबिक देश को चलाएंगे, मुल्क को चलाएंगे। उसी तरह से आज चलाते हैं कि कौन है हमें इसका भी 26 जनवरी का जो जश्न मनाया जाता है, इसका होता है जश्न मनाने का हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर-ए-हिंद। सदर-ए-हिंद है, इसको सदर जमहूरिया बोलते हैं। सदर जमहूरिया अभी है द्रौपदी मुर्मू। अब भारत में डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, राधा कृष्ण भी थे, उसके बाद फकीरुद्दीन अहमद थे, इससे सब तबके के लोग थे। अब ये सबसे छोटी पॉपुलेशन के, सबसे छोटी पॉपुलेशन के द्रौपदी मुर्मू आज उस ओहदे पर है जो सारे भारत में टॉप ओहदा है, सदर-ए-हिंद। इसलिए उसके बाद जब आज हर रियासत में कोई प्रथा, वो कोई वजीरा को नहीं दिया जाता है मनाने के लिए, उसको जैसे कि राज्यपाल, गवर्नर वो लोग बनाते हैं। नीचे कौन होता के बाद राज्य सरकार का हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोगों को बनाया जाता है। उसके नीचे सब डिवीजन में एसडीओ बनाते हैं, पैरेड देते हैं, सैल्यूट लेते हैं अपने तमाम फोर्सों का। आज दिल्ली में बैठी है और यहाँ भी ऐसे। हम आप कहेंगे आपसे क्या यहाँ पर अभी हमें जो साहब यहाँ भी गए थे, उनके सेक्रेटरी ने वहाँ सैल्यूट लिया हमारे जो साहब, तमाम पुलिस फोर्सों का, रैफ का। आज तो सिर्फ हम कमी देखेंगे, अभी बीएसएफ वाले नहीं थे, आगे बीएसएफ वाले भी आते थे। यही बच्चों की बात हम मस्जिद में हम खाते हैं, कहते हैं कि हमारी ये जमहूरियत के बारे में आज जो आप लोगों को यहाँ तालीम दी गई है, हम वेरी मच सेटिस्फाइड हमारे यहाँ की तालीम से। बहुत कुछ है कि हमारे बच्चों को किस तरह की तालीम मालूमात किए हैं आप लोगों ने। हम उनको यही कहेंगे कि हमारी तारीफ तो करते थे लोग सब, लेकिन हम कहते हैं कि 1969 साल से हम एमएलए हैं यहाँ के लोगों के, क्योंकि सिर्फ पसंदीदा एमएलए बोलते हैं लोग हमको। चौधरी साहब जो है हम लोग का पसंदीदा एमएलए है और 11 बार जिताए हैं हमको, और 55 साल से हम हैं यहाँ एमएलए बन करके आपके। लेकिन इससे पहले हम आपके हरिकुल इस्लाम साहब को और एसडीओ साहब को बोलते थे कि हम लोग चौधरी परिवार 180 साल से इस्लामपुर की निगरानी करते हैं, 180 साल से। तो हैरान है, मोहम्मद अली को हम खबर किए थे 180 साल से हम इस्लामपुर देखते हैं। मोहम्मद अली 180 साल कहते हैं। हमारे दादा मरहूम शेख अब्दुल अजीज यहाँ के जमशेद आते थे 1860 में, 1860 चलाते हुई तमाम यहाँ से बांग्लादेश तक, बिहार के कई थाना तक, जलपाईगुड़ी तक ये जमींदार के हैसियत में कराए थे। उसके बाद हमारे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद यूसुफ मरहूम वो जमींदार के हैसियत में चलाए। उसके बाद बड़े भाई हमारे मरहूम चौधरी मुजफ्फर मुल्क की ताज़ीम होने के बाद, मुल्क की आज़ादी होने के बाद 1952 साल से वो चलाए, और 1952 साल के बाद से 1968 साल में जो एक मोटर हादसा में उनका इंतकाल हो गया। अब लोग कहते हैं कि हम लोग को छोटी परिवार में लोग चाहिए, हमको फिर लोग लिखा है
और तब से 1960 से आज तक आप लोग साथ में हैं। बीच में एक बार कुछ लोगों का चेहरा बदला और कुछ हम हटे थे, लेकिन आज फिर लोग ने हम लोग को चौधरी चाहिए, इसलिए हमको आज तक आप लोग रखे हुए हैं। आज हम इस माहौल में पहली बार हैं, मदरसाओं की माहौल में, जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम देते हैं। हमारे मौलाना हम निशा साहब को शुक्रिया अदा करेंगे कि आज पहली बार आपने हमको यहाँ आने के लिए दावत भेजे थे और हम यहाँ पहुँचे, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम ये कहेंगे कि एक चीज से होशियार रहेगा जो आदि को साहब बढ़ते थे कि हमारे पीछे कुछ लोग लगे रहते हैं कि कुछ खुराफाती काम बता करके एक उधरों में गिरा देते हैं। जैसे आपका बीरभूम में हुआ, जिससे आपका हावड़ा में हुआ, मदरसा में कुछ लोग घुस जाते हैं। हम तालीम देते हैं इतने बच्चों को, उसमें कुछ बदमाश लोग, खुराफाती लोग तालीम याफ्ता बोल करके तालीम यही बोल करके आगे घुस जाते हैं। और वो भीतर सिर्फ यही नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदरसा, जिसकी वजह से हम लोग बदनाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मदरसा की तालीम, मदरसा में लोग जो तालीम देते हैं वो बदनाम हो जाते हैं कुछ खुराफाती लोगों की वजह से। इसलिए आप लोगों को होशियार रहने के लिए हम कहेंगे कि इस किस्म से आप लोगों को रोक होशियार रहिएगा, इतना आइडेंटिटी बनाएगा कार्ड के साथ। जो बच्चे हमारे आए हैं वो कहाँ से आए, कहाँ से उनका आइडेंटिटी कार्ड दीजिएगा। बिल्कुल कोई भी पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी में अगर आ जाए तो उनको आप रजिस्टर दिखाइएगा, जो तो आप ये बच्चे को खड़ा कर दीजिएगा ताकि उन लोग का सख्त सुबह हो और दूर हो जाएगा। मुर्शिदाबाद में काफी परेशानी उठाई, आपके बीरभूम में काफी परेशानी उठाए लोग। उस वक्त हमारे जाके मुख्यमंत्री से गुजरते भट्टाचार्य वो भी उधर में पड़ गए कि ऐसी की बात तो होती है, उससे तो हो सकती है। मदरसा में कुछ तालीम कुछ लोग गड़बड़ रहते हैं, लेकिन जब साफ इंक्वायरी का उन्होंने चैलेंज किया, क्या आप लोग इंक्वायरी करके देखिए मदरसाओं की तालीम में कहीं भी आप लोग देखेंगे कि खुराफाती लोग घुसे हुए हैं, तो आप लोगों को सजा दी, लेकिन पता लगाइए काफी गुजर भट्टाचार्य काफी इंक्वायरी नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं भी उनको किसी किस्म का कोई सबूत मिला नहीं कि गलत तरीका यहाँ पर। इसलिए आपको हम इस्लामपुर का एक पुराना मिले, आप लोग का खादिम, आप लोग का सेवक, आप लोग यही होशियारी करेंगे कि जज्बात में आकर के कि गैर किसी के आदमी को आप लोग यहाँ पर जगह नहीं देंगे। और इतनी बात कह करके सबको, आज के जो लोग आप लोग यहाँ पर हैं, आप सबको हम मुबारकबाद देते हैं। हमारे जश्न यौम जमहूरिया का इदारा मजीद नगर में आज इससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि जश्न यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे आज मना रहे हैं आप यहाँ, और सबको दावत देकर लाए हैं। यहाँ पर सब लोग आए और आप अपनी बातों को रखे हैं, तस्वीरें रखी हैं, इतिहास को बताए हैं हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान के प्रति इतिहास एक ऐसा इतिहास हकीकत में अभी कुछ बोल रहे थे यहाँ पर, दस्तूर हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुपर है, सुपर सारी दुनिया में, सारी दुनिया के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान के जो दस्तूर है वो का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, इतना बेहतरीन। अभी हम बच्चे तो बोलते थे कि हम सब बराबर हैं, सब बराबर है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई और जात पात का कोई बाकी नहीं है, सब लोग एक समान है, सब लोग एक तरह से रहते हैं। इलेक्शन होता है तो सब लोग लड़ते हैं, कोई भी जाति का हो, कोई भी आदमी हो, किसी की भी पार्टी का हो, सब खड़े होते हैं और अपने अपने तौर पर लड़ते हैं। हमारे यहाँ पर किसी का शादी को बोलना था, किसी का हकीकत ना, भाई आपका मन चाहे तो वोट दो, मन चाहे नहीं तो मत दो। हम अपने तकरीर में हम यही करते थे लोगों से
तस्वीरों में हम भी कहते थे कि अगर हम आपके पसंद में हैं तो रखिए हमको, अगर पसंद में नहीं है तो मत रखिए। हम लोगों को साथ बोल देते थे। इसलिए लेकिन लोग हमें को चाहते हैं और फिर पिक्चर दिखाए थे कि वोट में फिर हम जीत के तेरे आते हैं। हम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इलाके के लोगों को कि अपना पसंद में अभी तक रखते हैं। अल्लाह ताला इसी किस्म का ये पसंद लोगों के दिल में हमको हमारे लिए रखे रहें, ये हम दुआ करते हैं कि आपके साथ कुछ दौर हम रहेंगे, कुछ दिन तो और ज़्यादा दिन नहीं, और फिर बाद में हमारे बाद और जिसको भी आप लोग लाएगा आप लोग का बंदी पर होगा। और आज यहाँ आकर के आप लोगों का सबका जो मौका दिया हमको बोलने के लिए, कुछ आप लोगों के पास अपनी बातों रखने के लिए, हम इससे रख सके हैं और इससे हम बहुत खुश हैं। आप सबको हम सबको अदा करते हुए खास करके मौलाना साहब था जो हमारा मौलाना इदरीस साहब थे, हम नौकर टके, वो हम उनके बड़ी ताल्लुकात थे हमारे। हर 2 महीना पर 1 महीना पर हम जाते थे हमारे गोलगढ़ में। पहले चले जाते थे, आइए तो इधर बैठे थे गपशप करें। और मौलाना तो इदरीस हमारे वो इलाका का तमाम जगह का एक बहुत बड़े आमिर, एक आलिम माने जाते थे, और वो हमारे यहाँ पर चले आते थे, हम बात करते थे। उनके बच्चों को भी हमारे साथ में मुलाकात करा दी। वो एक झमेला हो गया था, क्या हो गया था, हम लोग गए और हमारे मुलाकात दे दिए और बोले कि तो ये सब इन लोग का ख्याल रखिएगा। और इसी तरह से हम बराबर इन लोग का खबर फैलाते हम रखते भी हैं। हमारे ईसा साहब और भाई बहन लोग हैं जो दावत हैं, आप लोगों के साथ हम हैं। आप लोगों की जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई किसी का मसला समस्या सामने आ जाएगा, आप लोग हमको याद कीजिएगा, बुला लीजिएगा, हम आपको खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आपकी जनवरी को सबको मुबारकबाद दे करके अपनी बात खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमान कराम का इस्तकबाल करते हैं कि जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। इजहार तशक्कुर क्यों कर हो, ये झुरत पैदा है। एक दरख्वास्त थी तमाम मेहमान कराम से, एक दरख्वास्त थी, तलबा भी चाह रहे हैं और असातिज़ा भी हम सब चाह रहे हैं कि ग्रुप शुरू हो जाए। आप तशरीफ रखें, असातिज़ा इस तरह आ जाए और तलबा सामने में खड़े हो जाए। इधर आ जाए, इस तरफ खड़े हो जाए, लाइन लगा करके सब लाइन लगा के आ जाओ। सब क्या आना चाहिए, खड़े हो जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शुरू हो जाएगा। आज के आए तारीखी प्रोग्राम जश्न जमहूरिया इख्तिताम पजीर हुआ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम मेहमान किराम का। उसके में सुनेंगे सबका आ जाएगा, उसके में सुनेंगे सबका आ जाएगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम को उम्र बरकत दे, उम्र तवील नसीब फरमाए और हमेशा इस तरीके की हमारी दावत को